بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں GNN اور میں ہوں عرفان بشیر اور میں ہوں ہدا شاہ۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حکومت نے کسی ایجنسی کو آڈیو ٹیپ کی اجازت نہیں دی۔ ISI، FIA، IB سمیت کوئی ایجنسی آڈیو ٹیپ نہیں کر سکتی۔ اٹارنی جنرل کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیکس کیس کی سماعت کے دوران بیان جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ ISI کہہ رہی ہے کہ آڈیو کہاں سے لیک ہوئی اس کے سورس کا پتہ نہیں لگا سکتے۔ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، اس کو حل کریں گے۔ اگر وفاقی حکومت یا ادارے نہیں بتائیں گے کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے تو نیشنل یا انٹرنیشنل سرویلنس کنسلٹنٹ کو عدالتی معاون مقرر کر دیا جائے گا۔ ذاتی نوعیت کی گفتگو کس نے اور کیوں ریکارڈ کی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے اور بشرا بی بی کی درخواست پر سماعت کی۔ وکیل لطیف کھوسہ، اٹارنی جنرل منصور اوان اور دیگر افسران عدالت میں پیش ہوئے۔ اٹارنی جنرل نے دلائل دیے کہ حکومت نے ISI اور IB سمیت کسی ایجنسی کو آڈیو ٹیپ کی اجازت نہیں دی۔ اگر کوئی ادارہ ایسا کرتا ہے تو وہ غیر قانونی ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ چیک کیجئے کوئی خبر تھی IB کو ریکارڈنگ کی اتھارٹی دی گئی۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس میں کہا کہ آڈیو لیک سنجیدہ مسئلہ ہے، اس کو حل کریں گے۔ پیمرا کے وکیل نے کہا کہ پرائیویٹ آڈیو لیک کو TV چینل پر نشر نہیں کر سکتے۔ عدالت نے کہا کہ اگر حکومت نے انہیں بتایا تو ہم نیشنل اور انٹرنیشنل عدالتی معاون مقرر کریں گے۔ عدالت نے FIA، PTA اور دیگر اداروں کو دوبارہ جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ ایک اور اہم خبر، کالعدم BNA کے کمانڈر 70 ساتھیوں سمیت قومی دھارے میں شامل ہو گئے۔ سابق کمانڈر سرفراز بنگلزئی نے کالعدم BNA سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں بھارت سے پیسے لے کر اپنے ہی لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ مذموم مقاصد کے لیے بلوچوں کو ریاست کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ یہ لوگ صرف بیرونی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ بھارت بلوچستان کو تباہ کرنے کے لیے فنڈنگ کر رہا ہے۔ کالعدم بلوچ نیشنل آرمی کے کمانڈر سرفراز بنگلزئی 70 ساتھیوں سمیت قومی دھارے میں شامل۔ کوئٹہ میں نگران وزیر اطلاعات کے ساتھ پریس کانفرنس میں BNA کے سابق کمانڈر سرفراز بنگلزئی نے انکشاف کیا کہ بھارت دہشت گردی کے لیے سہولت کار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ مذموم مقاصد کے لیے بلوچ ماؤں بہنوں اور بلوچ جوانوں کو ریاست کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ جنگ میں خواتین کو بھی دھکیلا جا رہا ہے۔ یہاں قومیت اور اس سرزمین کے لیے کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے۔ لوگ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے عام معصوم بلوچوں کو مروا رہے ہیں۔ بلوچوں کا خون بلوچوں کے ہاتھوں کروایا گیا اور اب بھی جاری ہے۔ اس تمام سازشوں میں خاص کر انڈیا کا ہاتھ ہے۔ بلوچ کمانڈر کا کہنا تھا کہ باقی لوگ بھی اس انتظار میں ہیں کہ ریاست ان کو ویلکم کہے۔ بندوق مسئلے کا حل نہیں، والدین بچوں کو تعلیم دیں۔ اس موقع پر نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی نے کہا کہ بغاوت چھوڑ کر واپس آنے والوں کو ریاست خوش آمدید کہے گی۔ غلط فہمیاں اور دوریاں ختم ہونی چاہیے۔ سرفراز بنگلزئی کا ساتھیوں سمیت قومی دھارے میں شامل ہونے کا اعلان۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ISI کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ سرفراز بنگلزئی عرف مرید بلوچ کا ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈالنا پاکستان کے لیے خوش آئند پیش رفت ہے۔ یہ اقدام دیر پا امن، افہام و تفہیم کو فروغ دینے اور ملک و قوم کی تعمیر نو کا متلاشی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیز، خاص طور پر ISI کی کوششوں کو سراہتا ہوں، جنہوں نے اس پیچیدہ منصوبے پر عمل درآمد کیا اور اس کی قیادت کی۔ بانی چیئرمین PTI 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے۔ علی ظفر اور بیرسٹر گوہر کا اعلان۔ کہا بانی چیئرمین PTI میاں والی، لاہور اور اسلام آباد سے الیکشن لڑیں گے۔ الیکشن کے بائیکاٹ کی طرف کبھی نہیں جائیں گے۔ انتخابی نشان کا جلد فیصلہ کیا جائے۔ 8 فروری کو ہر صورت الیکشن چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن یقینی بنائے کہ PTI کو بطور سیاسی جماعت حق ملے۔ میں نے عدالت کے سامنے درخواست سبمٹ کر دی تھی جو کہ عدالت نے الاؤ کر دی ہے۔ کل خان صاحب کے پاس انشاءاللہ تعالی نامینیشن فارم آئیں گے اور خان صاحب انشاءاللہ تعالی یہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ اگر آپ لوگوں سے راستوں میں نامینیشن فارم چھیننا چاہتے ہیں تو پھر یہ ایک شیم قسم کا الیکشن ہوگا، یہ پارٹیسپیشن والا الیکشن نہیں ہوگا۔ جہاں ہمارے کینڈیڈیٹ یا نامینیٹڈ لوگوں نے نامینیشن پیپرز فائل کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں کے نامینیشن پیپر چھین لیے گئے ہیں۔ ہر صورت میں ہم سپریم کورٹ کے سامنے
साथ खड़े हैं 8 फरवरी के इलेक्शंस कराने के लिए। हमने उसको बाइकआउट भी नहीं करना, हमने उसमें जो भी मुश्किलात हमारे सामने हैं उसके बावजूद हमने वो इलेक्शन जरूर लड़ना है। इमरान खान साहब जो हैं कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूंसी पे पाकिस्तान की वो भी कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं बानी चेयरमैन PTI किसी शाही फरमान की वजह से जेल में नहीं है। अगर कोई जलाओ घेराव करेगा तो उसे नताइज भुगतना होंगे। पेशावर में तलबा से गुफ्तगू करते हुए बोले इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। मुझे कोई मसला नहीं कि कोई लीडर पॉपुलर हो जाए। आप मकबूल लीडर के साथ रहना चाहते हैं तो ये आपका हक है। रियासत का निज़ाम आइन और कानून के मुताबिक चलता है। पाकिस्तान में एक पॉपुलर लीडर या अनपॉपुलर लीडर या सेमी पॉपुलर लीडर अगर वो जेल में है, वो किसी डिक्री की वजह से जेल में नहीं है। कोई मुगलिया एम्परर के किसी कानून या डिक्लेरेशन ऑफ हुक्मनामा जारी हुआ है कि इसको बंद कर दो, वो बंद नहीं हुआ। पाकिस्तान में रूल्स रेगुलेशंस मौजूद। 9 मई को राइट्स हुई हैं, ये एस्टैब्लिश चीज है। कल को कोई एहतजाज में आकर इधर आपकी बिल्डिंग को आग लगा दें कि क्यों जनाब एक पॉपुलर लीडर को आपने गिरफ्तार किया है, लेकिन ये कहना कि इख्तियार इस्तेमाल क्यों हुआ, ये बजाते खुद मैं समझता हूँ कि रियासत की एग्जिस्टेंस को चैलेंज करना। आप उन पॉपुलर लीडर के साथ रहना चाहते हैं, यू शुड वोट फॉर हिम, दिस इज योर एब्सोल्यूट राइट। कोई आपके इस राइट को ना चैलेंज करना चाहता है ना इसको ऑल्टर करना चाहता है। ये PMLN ने उनको जाके जेल में नहीं डाला, पीपल्स पार्टी ने नहीं डाला, जमात उलमा इस्लाम ने नहीं डाला। अगर किसी सियासी या प्राइवेट गिरोह ने किया होता तो ये बहुत बड़ी वायलेशन। जब वो इम्प्रिजनमेंट का सामना करते हैं जो कि पाकिस्तान के माजी में कई पॉलिटिकल लीडर्स ने किया, अगर आप चाहते हैं कि ये निज़ाम तब्दील हो, जब इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, उसके नतीजे में जो भी हुकूमत आएगी वो हुकूमत उस निज़ाम को तब्दील करना चाहती है, आइनी तौर पे आइन के खाके को चेंज करना चाहती है, उनके पास ये राइट है, कर दे। ये काम मेरा तो नहीं है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं ना अहली खत्म हो गई, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मुझ पर और मरियम नवाज पर झूठे केसेस बनाए गए। ऐसा कहाँ होता है कि 25 करोड़ अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म को 4-5 बंदे बैठकर घर भेज दें। पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में बोले कि जाली केसेस जो बने अब वो खत्म हो गए। सिलेक्टेड को लाने के लिए मुझे निकाला गया, सिलेक्टेड को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया। आज मुल्क जिस हाल में है उसके जिम्मेदार हम सब हैं। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक चांद पर पहुंच गए, हम अभी ज़मीन से नहीं उठ रहे। उम्र भर के लिए नाअहल करार दे दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। कि झूठे केसेस बनाने की क्या जरूरत थी? दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। जाली केसेस जो बने थे उन खत्म हो गए हैं। 3 हेयरिंग्स में ही उन्होंने उठा के बाहर फेंका। और आज कहाँ गई वो सजाएं? आज मेरी डिस्क्वालिफिकेशन भी ठीक हो गई है। 25 करोड़ अवाम के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ये इस तरह के बंदे बैठ के 4-5 बंदे बैठ के तो उसको घर भेज दें, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से उतार दें। ऐसा तो नहीं होता, ना होना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द के मवालिक चांद पे पहुंच गए हैं और अभी हम जमीन से नहीं उठ रहे। इसका जिम्मेदार और कोई नहीं है सिवाय हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। हमने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ियां मारी। पनामा से अकामा पे आ गए और उसको लाने के लिए उसको सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया और उसको ले आए और देखें उसने क्या मुल्क का भट्ठा बिठाया। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार के घर धमाका हुआ। धमाका गैराज में हुआ है। बहुत बड़ी खबर। साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार के घर में धमाके की इत्तला बताई जा रही है और घर के गैराज में धमाका हुआ है। अपडेट कर रहे हैं आपको, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर धमाका हुआ है और ये धमाका बताया जा रहा है कि उनके गैराज में हुआ है। आपको बताते चले कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का घर जो है वो लाहौर में है और इतलात यही आ रही हैं कि उनके घर धमाका हुआ है और धमाका बताया जा रहा है कि गैराज में हुआ है। ये भी इतलात है कि ये दस्ती बम जो है उनके घर फेंका गया था जिसकी वजह से ये धमाका हुआ और धमाका गैराज में है। जी हाँ, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार के घर में धमाके की इत्तला है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे सरफराज अहमद से। सरफराज, क्या इब्तदाई मालूमात सामने आ रही हैं? देखें, इब्तदाई मालूमात के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर के गैराज में जो है वो एक जोरदार धमाके की जो है वो इत्तला मौसूल हुई है और जो वहाँ पर ऐनी शाहिदीन है उनका ऐसा कहना है, उनका ऐसा दावा है कि गैराज में धमाके से घर की खिड़कियों के जो शीशे हैं वो भी टूट चुके हैं और इस धमाके के बाद
पुलिस की भारी नफरी जो है वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की रिहाइश गाह के बाहर जो है वो पहुंच चुकी है। और एनी शाहिदीन का ऐसा कहना है कि धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज जो है वो दूर दूर तक सुनी गई है। ताहम पुलिस ज़राए का ऐसा कहना है कि अभी इस धमाके के हवाले से कुछ भी कहना जो है वो कबल अज वक्त है, क्योंकि अभी इब्तदाई तौर पर तहकीकात का बाकायदा तौर पर आगाज भी कर दिया गया है और ये इतलात भी सामने आ रही हैं कि इस धमाके में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस की नफरी इस वक्त मौके के ऊपर पहुंच चुकी है और जाए वकुआ को जो है वो मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है और जो वहां पर शवाहिद मौजूद हैं उनको भी जो है वो इकट्ठा करने का अमल शुरू कर दिया गया है। और पुलिस ज़राए का ऐसा कहना है कि जो ही इस हवाले से किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट सामने आती हैं तो मीडिया को भी इस हवाले से आगाह किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये गार्डन टाउन का इलाका है जहां पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर के गैराज में ये धमाका हुआ है और धमाके की आवाज जो है वो दूर दूर तक फैल गई है। और इस धमाके से जहां पर करीबी घरों के जो है वो शीशे टूट गए हैं और दूसरी जानिब इस धमाके की वजह से पूरे इलाके के अंदर जो है वो खौफो हरास भी फैल गया है और लोग अपने घरों से जो है वो बाहर आ चुके हैं। और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पुलिस की भारी नफरी इस वक्त जो है वो मौके के ऊपर पहुंच चुकी है और घर को जो है वो मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और किसी को भी आगे जाने की जो है वो इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन जो एनी शाहिदीन है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि धमाके की जो आवाज है वो दूर दूर तक जो है वो सुनी गई है। अच्छा सरफराज, ये भी बताएगा कि इस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था? आप बता रहे हैं कि शुक्र है कि कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन घर का बताइएगा कि घर कितना उसको कितना नुकसान पहुंचा है और कोई जख्मी तो नहीं हुआ? देखें, जो इब्तदाई इतलात हैं और इस इब्तदाई इतलात के मुताबिक ये धमाका जो है वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर के गैराज के अंदर जो है वो हुआ है। और घर के गैराज में धमाके से घर की जो खिड़कियां हैं उनके जो है वो शीशे भी टूट चुके हैं। और अभी इस धमाके के हवाले से कुछ भी कहना जो है वो कबल अज वक्त होगा कि ये धमाका जो है वो किस चीज का जो है वो यहाँ पर ये धमाका हुआ है। लेकिन एनी शाहिदीन इस बात को जो है वो कंफर्म कर रहे हैं कि यहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ है और उस धमाके की जो आवाज है वो दूर दूर तक जो है वो सुनी गई है। और इस धमाके की वजह से पूरे इलाके के अंदर जो है वो खौफ हरास भी फैला है और जो यहाँ पर करीबी जो पुलिस स्टेशन है उसकी नफरी भी यहाँ पर पहुंची है। और मैं आपको बताऊं कि साबिक चीफ जस्टिस होने की वजह से उनको यहाँ पर पुलिस की जो सिक्योरिटी है साकिब निसार साहब को वो भी यहाँ पर जो है वो फराम की गई थी। और कोई भी अगर उनकी रिहाइश गाह की तरफ जाता था तो यहाँ पर उनके जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी मौजूद होते थे और पुलिस के एहलकार जो हैं वो भी उनके घर के बाहर जो है वो मौजूद होते थे। ताहम इस धमाके की इत्तला के बाद पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौके की तरफ जो है वो पहुंच चुकी है और इस वक्त इलाके को जो है वो कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। सरफराज, ये भी बताइए क्या साबिक चीफ जस्टिस या उनकी फैमिली के कोई मेंबरान घर पर मौजूद थे? देखें, इस हवाले से कुछ भी कहना जो है वो कबल अज वक्त होगा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार घर के ऊपर मौजूद थे या फिर उनके अहले खाना जो है वो घर के अंदर मौजूद थे। इस हवाले से जो है वो किसी किस्म की इतलात जो है वो अभी सामने नहीं आई हैं और ना ही पुलिस की जानिब से जो है वो किसी किस्म की कोई इतलात जो है वो फराहम की गई हैं कि पुलिस की जानिब से किसी किस्म की इतलात फराहम नहीं की गई। सरफराज, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं रावलपिंडी में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के स्क्वाड के करीब फायरिंग। जज मोहम्मद बशीर समेत तमाम अफराद महफूज रहे। रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक किसी अहम शख्सियत पर फायरिंग का वाकया नहीं बल्कि मामला फैमिली से नाराजगी की वजह से पेश आया। मुल्जिम शायान जुल्फिकार को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया है।